Very good evening, everyone. I'm so happy to be here in this evening. Welcome from SNCRIA Foundation and Autism Without Border Foundation. Like we both are together for behavioral issues in children and their management. I'm Harshali Kharche. I'm a founder and a director of SNCRIA Foundation. Also a parent of 2 kids on spectrum. So I know what is there uh, with children and their behavioral issues. SNCC, you know everyone now what is SNCC. We are working towards empowerment of parent by ensuring their peace of mind. In this, we are working on various areas like awareness program, parent empowerment, activities for special needs children, financial advisory, advocacy, and mental and physical health to support the community in overall. So this is I will not take much time of yours. I would like to come on the topic for today's topic. Already told you. For that, I invite, we have Miss Nadia Riaz with us. She is behavioral therapist, BSB USA. She's special educator and BBA. She is also founder of Special Care Rawalpindi, Pakistan. Also, she is working with project coordinator, autism surveillance and management. That is Autism Without Border. Also, we have with us our beloved Dr. Azra Rafiq. Last time she had a very nice session on early screening. So she's also there. We are so fortunate to have you both on this platform, and both are working for this community selflessly. I welcome Nadia, and I'll hand it over to you. Yeah. My mic is switched. Yeah. Good evening, everyone. It's a pleasure to be with Harshali and SNIC Rehabilitation Foundation again. And it's an honor for me. Thank you so much, Harshali, for a great introduction. As Harshali have already introduced me, I'm Nadia Riaz, a special educator, behavior therapist, and parent counselor. And I'm currently working with the Autism Surveillance and Management Project. Our motto is also training parents, educators, and caregivers. And I am very grateful to Dr. Azra, the director of Autism Surveillance and Management Project, to join us from Canada. And I would request her to say a few words about our project, if she can share some words. Over to you, Dr. Azra. Thank you so much. Okay, thank you. Thank you, Nadia. Could you please allow me to share my screen, just 2-3 slides? Yes, share, Dr. Azra. You can share. I just want to instruct some to the parents. If you have any questions, please type in a chat box at the end of the webinar. So we will not be unmuting, and please keep your question generalized. We will be able to answer personal questions, individual questions in this session. Thank you. Yeah, over to you, Dr. Azra. Thank you, Ashley. Just briefly, because I don't want to take much time, our main topic is behavioral issues in children. So I just wanted to tell you about our project, and the name of the project is Autism Surveillance and Management, ASM. And we are doing under the umbrella of Autism Without Border. And actually, this is the part of preventive pediatric program. And the preventive pediatric program is, 1 minute, it is not moving. The preventive pediatric program, we briefly describe it as a physical, mental, and social well-being of children.
So under the preventive pediatric program, we are doing autism surveillance and management because it covers the social issues and it covers the mental issues of the children. And it's not moving. I don't know what happened. Sorry. And actually under the autism surveillance and management, our main objective is to do the early diagnosis of autism so that we can start the early intervention and we can get the best potential of the child. And under this program, we are doing actually the awareness of the autism among the healthcare providers, that is doctors, nurses, technicians, midwives. And then we are also doing the awareness program of the autism for our children caregivers. Children caregivers may include mothers, parents, grandparents, uncle, aunt, teachers, daycares, all daycare staff. So this is a briefly introduction of the ASM because it is not, the slides are not moving. So I just describe it briefly. And then what we do that we do the screening as we, last time we discussed it in detail, the whole screening of the ASM project and autism spectrum disorder, how we just teach our mothers and grandmothers how to screen the children for the autism. And then we connect them to the different rehabilitation centers. So briefly, this is our introduction. Okay, thank you. Thank you, Harshli and Nadia. Thank you so much, Dr. Ezra. Harshley, with your permission, should I start now? Sure. Please go ahead. So as I have introduced myself, and we will be talking about behavioral issues in children and their management. And I will try my level best to go in bilingual, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे भी पेरेंट्स होंगे जिनके लिए इंग्लिश समझना शायद थोड़ा मुश्किल हो, तो इंडिया में जिसको इंग्लिश कहा जाता है, हिंदी प्लस इंग्लिश, और पाकिस्तान के लिए उर्दू, तो आई विल ट्राई टू गो इन 3 languages. Okay, just a request to all of you, if you could just have pencil and paper with you so that whatever important points you think you can write them down. As it is a Chinese proverb, I hear and I forget, I see and I remember, I do and I understand. So if you will just write them down, so it will easy for you to understand, and that will also be with you, and you can take care of it later on and refer to it later on for your reference, for your children's reference. Okay, I will try to take this presentation in a lighter mood, ताकि हम सब जरा relax भी हो. पहले ही हम पे इतना बड़ा burden होता है. We are taking care of children with special needs. तो पहले तो मैं आप सब पेरेंट्स से ये कहूंगी कि give a tap to yourself. अपने आप को कॉम्प्लीमेंट दे सबसे पहले. you all people are doing a great job. Clap for you. ठीक है? क्योंकि हमारी expectation when we were going to be parents, we were expecting just like first photo, okay, हम ऐसे होंगे. और parenting is easy until you have kids. It's very well said that parenting is easy until you have kids. Or afterwards, you know, when you have kids, even with neurotypical kids, you face all these issues. बच्चे लड़ रहे होते हैं आपस में, behavior issues आ रहे होते हैं, different आपको मसले face करने पड़ रहे होते हैं, तो उनके भी behaviors को manage करना होता है. It's not just with special needs kids. Special needs kids के साथ थोड़ा सा जब हमें मसला ये ज़्यादा आ जाता है कि वो communicate नहीं कर पा रहे होते, तो उनकी कम्युनिकेशन की वजह से उनके जो बिहेवियर्स होते हैं वो ज़्यादा एग्रीवेट होते हैं और हमें उनको प्रॉब्लम होती है कैटर करने में.
as mentioned, the main issue is behavior. And our child's most developed form of communication is behavior. Behavior से वो क्या करता है, अपनी communicate करता है जो वो उसके अंदर feeling होती है. और ये आप सब फील करते होंगे कि जो नॉन वर्बल बच्चे होते हैं उनके बिहेवियरल इश्यूज ज्यादा हो रहे होते हैं, क्योंकि वो बोल के नहीं बता सकते, तो वो अपने बिहेवियर से एक्सप्रेस करते हैं कि आई एम टायर्ड, आई नीड यू, आई एम ओवरवेल्म्ड, इट डजंट फील राइट. ये वो किस तरह एक्सप्रेस करते हैं? थ्रू देयर बिहेवियर्स. और हम लोगों को पहचानना होता है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, और माँ बाप माशाल्लाह इस चीज में इतने ट्रेंड हो जाते हैं कि उनको पता होता है कि बच्चे क्या कह रहे हैं और वो पहचान लेते हैं. I'll go with presentation outline that I will be discussing about what is behavior, difference between behavioral issues and behavior disorders, reasons and functions of challenging behaviors, antecedent behavior and consequence जो ABC हमारा होता है, और techniques of managing behavior for parents and for therapists, question and answer session at the end. And as Harshali has requested you all, you can write your questions in the chat and we will try to cater them at the end of our session. और वही बात है कि जनरल क्वेश्चंस हो, अगर स्पेसिफिक होंगे तो वो कुछ मसला हो जाता है, क्योंकि उसके लिए हमें प्रॉपर एक असेसमेंट के थ्रू गुजरना पड़ता है अगर हम स्पेसिफिक बच्चे की बात करते हैं. लेकिन बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन आपके कई सवाल दूर हो जाए, उनके जवाब आपको मिल जाए इस प्रेजेंटेशन के बाद. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बिहेवियर? एनीथिंग अ पर्सन सेज or does. Behavior includes observable actions, all the things other people can see, as well as things everyone else may not be able to see, such as feelings, emotions, thinking and remembering. अब ये कैसे behavior है? एक तो हो गए behavior हम देख रहे हैं, वो behavior हो गए, हम observe कर रहे हैं, और कुछ हमारी beliefs होते हैं जो हमारे अंदर होते हैं, and that takes the picture of behavior. वो कहते हैं ना, beliefs breed behavior. हमारे जो belief होते हैं वो हमारे behavior बनते हैं. तो हमारे जो beliefs, अक्सर हम beliefs को change करने के लिए we go for different therapies. इसके लिए भी psychotherapy वगैरह के लिए हम जाते हैं. तो that changes our beliefs to polish our behavior. उसके बाद behavior क्या है कि response of an individual or group to an action, environment, person और stimulus. अब ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये लाइन के जो एक इंडिविजुअल या ग्रुप को रिस्पॉन्स होता है किसी भी अपनी एनवायरनमेंट को. अब हमारी आजकल एनवायरनमेंट में क्या है, एक ग्रीफ सी सिचुएशन है कोरोना वायरस की वजह से, तो वो हमारे बिहेवियर्स में भी डिपिक्ट हो रही है. ऐसा है ना, क्योंकि हम लोग इतने ज्यादा ओवरवेल्म्ड हुए में हैं और हमारे सारा हमारा सिनेरियो चेंज हुआ है, हमारी वर्किंग हैबिट्स, हमारा रूटीन सब डिस्टर्ब है. जब हम बड़े होके इतने डिस्टर्ब है तो ऑब्वियसली हमारे बच्चे भी डिस्टर्ब हैं, क्योंकि उनको जो है वो ऑनलाइन क्लासेस, स्पेशली जो हमारे स्पेशल नीड्स किड्स हैं उनके लिए तो कई दफा ऑनलाइन क्लासेस वर्क नहीं करती, ऑनलाइन थेरेपी सेशंस वर्क नहीं कर रहे होते हैं, तो उनका एक पूरा रूटीन डिस्टर्ब हुआ है, जिसकी वजह से आजकल अक्सर पेरेंट्स ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि हमारे बच्चे के बिहेवियर्स में ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं, ज्यादा चैलेंजिंग वो बिहेवियर हो गए. तो उन सब चीजों को हमने देखना होता है, और ये हमारे रीजंस होते हैं डिफरेंट जो हमारे बिहेवियरल प्रॉब्लम्स में चेंज होते हैं, और उनके हिसाब से फिर हम उनकी इंटरवेंशन डिजाइन करते हैं. जो रीजन होता है उसके हिसाब से उसकी इंटरवेंशन फिर हम सोचते हैं कि क्या होगा. अब जब हम बिहेवियर की बात करते हैं तो बिहेवियर या तो अप्रोप्रिएट होगा या इनअप्रोप्रिएट होगा, और हमने वो बच्चों को समझाना है कि कौन सा बिहेवियर अप्रोप्रिएट है, कौन सा इनअप्रोप्रिएट. वो हम कैसे समझा सकते हैं? कुछ बच्चों के लिए जो स्पेशली ऑन स्पेक्ट्रम होते हैं उनके लिए विजुअल्स बहुत वर्क करते हैं. तो इस तरह के विजुअल्स के साथ, जैसे ये साइड पे हैं कि अप्रोप्रिएट चॉइसेस क्या होंगी और इनअप्रोप्रिएट चॉइसेस क्या होंगी, ये हम बच्चों को डिफरेंट सोशल स्टोरीज के थ्रू, डिफरेंट विजुअल स्केड्यूल्स के थ्रू हम ये बात बच्चों को समझा सकते हैं.
उसके बाद एक जो बड़ी कंफ्यूजन आती है, बिहेवियर इश्यूज और डिसऑर्डर्स। अक्सर हम लोग इनको एक ही कंसिडर कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बिहेवियर इश्यूज किसी के साथ भी हो सकते हैं, हमारे साथ भी कोई ना कोई हो सकता है, हमारा कोई बिहेवियर इशू हो रहा हो और वो किसी ना किसी वजह से हो रहा हो। इस वक्त जैसे हम टेंशन में हो रहे हैं, एग्रेसिव हो रहे हैं आजकल ज्यादा एज पर द सिचुएशन गोइंग ऑन। लेडीज भी हैं, उन पे ज्यादा बर्डन आया इस टाइम, मदर्स आर ओवर बर्डन बिकॉज they have to tackle the kids, home, everything simultaneously, and especially the working women, they have to look all the things. So we are also going through behavior issues these days. So behavior issue may or may not be due to underlying behavior disorder. Okay? And they may be sometimes for a very little time, which may be due to any medical issue, environmental change, fatigue, work pressure, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एक्सेट्रा। अब जैसे किसी के सर में दर्द है तो वो भी चिड़चिड़ा हो जाता है, इरिटेटेड फील कर रहा होता है, दैट इज अ मेडिकल इशू, ही इज हैविंग पेन, सो ही इज शोइंग सम बिहेवियर्स। इसी तरह न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अगर किसी में हो जाती है, बच्चों वगैरह में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई है तो वो मिट्टी खाना शुरू कर देते हैं, इस तरह के। तो ये कई दफा, और जब हम वो डेफिशिएंसी को खत्म कर देते हैं, उसका वे आउट निकाल लेते हैं, तो वो चीज कम हो जाती है। दिस मींस दैट वाज नॉट अ डिसऑर्डर, दैट वाज अ इशू। जैसे इसमें इश्यूज की एग्जांपल दी हुई है कि डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स, फॉर एग्जांपल डिस्ट्रॉइंग, थ्रोइंग थिंग्स, हार्मिंग अदर्स, फॉर एग्जांपल हिटिंग, बाइटिंग, वॉन्डरिंग, सोशली इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर्स, स्पिटिंग कर रहे बच्चा, inappropriate eating patterns or unhealthy eating, weaning issue in transitions, excessive screen time, ये हमारे सारे क्या आ रहे हैं, ये बिहेवियर इश्यूज हैं। अब ये एक्सेसिव स्क्रीन टाइम भी एक बिहेवियर इशू आजकल हुआ है ना, कि बच्चों का एक्सेसिव स्क्रीन टाइम होता है जिसकी वजह से उनको कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, उनकी कम्युनिकेशन पीछे जा रही है। आज स्पीच डिलेस भी अक्सर जो है एक्सेसिव स्क्रीन टाइम की वजह से हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमारी आ जाती हैं बिहेवियरल इश्यूज। अच्छा, जब हम इश्यूज की बात करते हैं, बिहेवियर्स की बात करते हैं, तो हम उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट होती है ना, तो रेड पे हम लाते हैं डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स, डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर्स, जो जैसे कि इसमें बताया है कि आपके डिस्ट्रॉइंग है, थ्रोइंग थिंग्स है, आप बच्चा सेफ्टी इश्यूज है, बाहर निकल गया, वॉन्डरिंग है, हिटिंग है, बाइटिंग है, दीज ऑल आर नोन एज डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर्स। उसके बाद एक आते हैं जो येलो लाइट में है, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर। इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है कि जो अच्छे नहीं लग रहे होते, बच्चा स्पिटिंग कर रहा है, वो इतना मतलब हार्मफुल नहीं है, लेकिन इट डजंट सीम्स नाइस, बच्चा नेल बाइटिंग कर रहा है, इस तरह की जो भी चीजें, दैट कम्स इन इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर्स। एंड देन ऑन ग्रीन लाइट कम्स अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स। सो वी वांट कि इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स पे बच्चा जाए, अप्रोप्रिएट पे जाए, लेकिन दैट गोज स्टडी, मतलब इतनी तेजी से नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता हमने उसमें चलना होता है। अच्छा, अब बिहेवियर डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? बिहेवियर डिसऑर्डर्स इन्वॉल्व्स a pattern of disruptive behaviors in children that last for at least 6 months and cause problems in school, at home and in social situations. अब कोई बिहेवियर आपका डिसऑर्डर तब बन जाएगा अगर वो 6 महीने या उससे ज्यादा परसिस्ट करता है, ठीक है? तो then we need to be more attentive and we need to be more careful. We should go and check a psychologist if that behavior persists for 6 months or more. फिर उसमें देखा जाता है कि बिहेवियर डिसऑर्डर जो होते हैं वो आपका, उसमें इनअटेंशन भी आ सकती है, हाइपर एक्टिविटी भी आ सकती है, इम्पल्सिविटी भी आ सकती है, किसी चीज पे फौरन रिएक्ट करना, डेफिएंट बिहेवियर जिसको हम कहते हैं मुखालफाना, मुखालफत करते रहना किसी भी चीज की, ड्रग यूज, क्रिमिनल एक्टिविटी, ये सारे हमारे आ जाते हैं बिहेवियर डिसऑर्डर्स में। और इसमें आजकल जैसे हमारी ये अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, ADHD जिसको कहा जाता है, इवन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम भी डिसऑर्डर है। और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में जो बिहेवियर इश्यूज ज्यादा होते हैं वो रिपीटेटिव बिहेवियर्स होते हैं, कि बच्चा रिपीटेटिव बिहेवियर्स कर रहा होता है।
उसका भी इंशाल्लाह मैं भी आपको आगे चल के बताऊंगी कि उसमें क्या इशू होता है। ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर्स, ओडीडी, ओसीडी, जो आपका कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, तो ये सारे हमारे डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। इसके बाद ये डेंजरस टू वन ओन सेल्फ। अब कुछ ऐसे हैं कि जो आप दूसरों को जिससे नुकसान पहुंचा होता है, कि लाइक हिटिंग है, बाइटिंग है, इससे आप दूसरों को हर्ट कर रहे होते हैं। कुछ ऐसे बिहेवियर्स होते हैं कि दूसरों को तो नहीं कुछ हो रहा होता, लेकिन आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, बच्चा अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा होता है। लाइक हैबिट डिसऑर्डर्स हैं। हैबिट डिसऑर्डर्स में आपके टिक्स आ जाते हैं, नेल बाइटिंग आ जाती है। टिक्स ऐसे होता है कि लगातार हिलते रहना इस तरह, ये आपका टिक्स। नेल बाइटिंग है, फिंगर थंब सकिंग है। अब अक्सर आपने देखा होगा बच्चे इतने फिंगर या थंब सकिंग करते हैं कि उनकी नेल्स इस तरह हो जाते हैं बिल्कुल खराब। इवन नेल बाइटिंग से भी ऐसे हो जाते हैं। टीथ ग्राइंडिंग है, उसमें भी टीथ की प्रॉब्लम फिर बच्चे को हो जाती है। इवन हैबिट डिसऑर्डर्स कई दफा हम लोगों के साथ भी, कुछ लोगों को आदत होती है लगातार पाँव हिलाते रहने की, कुछ लोगों को आदत होती है ऐसे मुंह से कोई आवाज निकालते रहने की, बट तो ये भी हैबिट डिसऑर्डर्स आ जाता है। इमोशनल डिसऑर्डर्स है, ब्रेथ होल्डिंग स्पैज्म, बच्चा अपना सांस रोक ले, बिल्कुल रोते रोते अपना सांस रुक जाता है, तो वो भी उसके लिए हार्मफुल है। दैट मे लीड टू सीरियस हार्म टू हिम। और टेम्पर टेंट्रम्स हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, पाइका जिसको कहा जाता है कि ये जो चीजें नहीं खानी चाहिए, बच्चे कई दफा पेंसिल क्रम्स खा रहे होते हैं, मिट्टी खा रहे हैं, और डिफरेंट इस तरह की चीजें, सफेदी खा रहे हैं, तो वो किस वजह से होती है? वो अक्सर आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से होती है, कई दफा सेंसरी इशू की वजह से भी हो सकता है पाइका। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। अब साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर क्या है कि आपका साइको मीन्स माइंड से, और सोमेटिक मीन्स बॉडी, माइंड और बॉडी। कई दफा आपके जैसे अगर आपके सर में दर्द है तो वो आपको मेंटली परेशान कर रहे हैं, आपके मतलब फिजिकल इलनेस है बट दैट इज डिस्टर्बिंग यू मेंटली, आप लगातार चिड़चिड़े रह रहे हैं। और कई दफा आपको मेंटल, आप एंजाइटी है, आपके साथ कोई और इशू है, और वो आपको फिजिकली नुकसान पहुंचा रहा है। यू डोंट वांट टू ईट एनीथिंग, यू आर गेटिंग वीकर एंड वीकर। सो ये भी होते हैं आपके, ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि रीजंस क्या हो सकते हैं, चैलेंजिंग बिहेवियर्स के क्या रीजन हो सकते हैं और उनकी मैनेजमेंट क्या होगी। अब रीजंस, मेडिकल इश्यूज आ गए, ठीक है। उसके बाद चेंज इन एनवायरनमेंट है, अनेबल टू अंडरस्टैंड बट पीपल डिमांड्स फ्रॉम यू। बच्चा नहीं समझ पा रहा कि लोग उससे क्या चाह रहे हैं। अब हमने बच्चे को कमांड दी है जिसको हम रिसेप्टिव लैंग्वेज कहते हैं, कि बच्चे की रिसेप्टिव लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई, हमने उसको कमांड दी, वो नहीं समझ पा रहा कि हम उससे क्या कहना चाह रहे हैं, तो वो एग्रेसिव होगा। आपका जो है वो कई दफा हिटिंग शुरू कर देता है, बाइटिंग शुरू कर देता है। ये भी रीजन हो सकता है आपके बिहेवियर का, या वो अपनी डिमांड कन्वे नहीं कर पा रहा, जिसको हम एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, लैक ऑफ एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है। अब रिसेप्टिव लैंग्वेज में आपका काफी चीजें आ जाती है कि रीडिंग से भी आप रिसीव कर सकते हैं, लिसनिंग से भी रिसीव कर सकते हैं। तो हम ये कंफ्यूजन में होते हैं अक्सर कि सिर्फ लिसनिंग के वो समझ नहीं पा रहा, दैट इज रिसेप्टिव। अगर बच्चा, कई दफा ऐसा होता है कि वो रीड करके भी अंडरस्टैंड कर लेता है, तो दैट इज ऑल्सो रिसेप्टिव, कि उसकी रिसेप्टिव लैंग्वेज है। तो इस पे हमें काम करने की जरूरत है, उसकी रिसेप्टिव लैंग्वेज बिल्डअप करनी है, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज बिल्डअप करनी है, ताकि उसके बिहेवियर्स जो हैं, प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स, वो कम हो सके। उसके बाद अदर पीपल्स बिहेवियर, जिसको कहते हैं रिपल इफेक्ट। अब ये क्या है? ये पिक्चर में आप देखें कि एक बॉस ने अपने एम्प्लॉय को डांटा। अब एम्प्लॉय साहब जो हैं वो घर आए, उन्होंने बेगम को डांटा। एक होता है ना, हमारी एक चेन बन जाती है, हमें जो हम अपना एंगर होता है वो आगे फॉरवर्ड करने शुरू हो जाते हैं। बेगम ने वही चीज अपने बच्चे को डांटी, कहीं ना कहीं गुस्सा निकालना है हमने,
गुस्सा अंदर आ गया, अब उसको निकालना है। तो बेगम जो है वो बच्चे को, माँ अपने बेटे को वो डांट रही है, और फिर वही चीज बेटे में ट्रांसफर हुई है और बेटा अपना गुस्सा पेट पे निकाल रहा है। तो आप देखेंगे कि जब हम बिहेवियर्स की बात करते हैं, कोई हमारे पास आते हैं पेरेंट्स, तो हम उनसे फैमिली का भी पूछते हैं कि फैमिली के क्या हालात है। कई दफा जो सेपरेटेड पेरेंट्स होते हैं या कई दफा जॉइंट फैमिली में अगर हैं और उनमें टेंशन चल रही है, तो उसका इफेक्ट भी बच्चे पे आ रहा होता है। इसीलिए जब हम बिहेवियर्स की बात करते हैं, उसकी असेसमेंट की बात करते हैं, तो हम इन सारी चीजों को देखते हैं कि क्या ऐसी चीजें। कई दफा ऐसा होता है कि कोई चेंज आई है, कोई नया मेहमान आ गया घर में, या अपने कोई नए घर में आप शिफ्ट हुए हैं, कोई नया पेट लिया, कोई फर्नीचर चेंज हुआ, तो ऐसी चेंजेस भी बच्चे पे इफेक्ट कर रही होती है। तो जब भी आप सोचें कि बच्चा एकदम से कोई बिहेवियरल चेंज आ गई है बच्चे में, तो जस्ट थिंक कि ऐसी क्या चीज हुई है घर में, ऐसा क्या कुछ डिफरेंट चीज हुई है एनवायरनमेंट में जिसकी वजह से शायद वो बिहेवियर चेंज हो। बट सबसे पहले, जैसे मैंने मेडिकल इशू है, जो नॉन वर्बल बच्चे हैं वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते, अगर किसी बच्चे के पेट में दर्द है, कहीं और कोई इशू है, तो उसके लिए चेक करवाया जाए। एंड फॉर दैट ऑब्वियसली वी विल बी नीडिंग अ पीडियाट्रिशियन। तो हम किसी की भी कंट्रीब्यूशन को रूल आउट नहीं कर सकते, पूरी टीम होती है। when we work on our special needs kids, even on any kid, we will be needing a complete team. कोई एक अकेला बिहेवियर थेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेटर, स्पीच थेरेपिस्ट काम नहीं कर सकता, उसको साथ में अपने डॉक्टर्स भी चाहिए, अपने आप को जो है सोशल वर्कर भी चाहिए होते हैं, जो अनफॉर्चुनेटली इधर नहीं, हमारे मुल्क में ये फैसिलिटी, इवन आई थिंक इंडिया में भी शायद नहीं है सोशल वर्कर्स की इतनी, ताकि उनकी सही प्लेसमेंट की जा सके। उसके बाद हम जब बिहेवियर्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि फंक्शन क्या है। सबसे पहले हमने देखना है बिहेवियर का क्या फंक्शन है जिस वजह से वो बिहेवियर हो रहा है। अब 4 फंक्शंस होते हैं, ये आप अपने पास नोट डाउन कर लें, सीट के नाम से आपको याद रहेगा अगर आप सीट करेंगे। सेंसरी, स्केप, अटेंशन और टेंजिबल। हमने देखना है कोई भी बिहेवियर है तो उसकी क्या वजह है। उसके लिए हम एक सेकंड में आपको ये दिखाऊं, ये एबीसी चार्ट होता है, ये बनाते हैं हम, बच्चे का लिखते हैं कि अगर कोई बिहेवियर हुआ उससे पहले क्या हुआ, फिर वो बिहेवियर हुआ और फिर उसके बाद क्या हुआ। ठीक है, उससे हमें उसका फंक्शन पता चलता है। उसमें आपकी एक्टिविटी भी आती है कि उस वक्त बच्चा क्या कर रहा था, उस टाइम पे बच्चे की क्या एक्टिविटी, क्या वो जैसे उसका डिनर टाइम था उस वक्त हुआ। ये सारी चीजें देख के हम उसका फंक्शन निकालते हैं। अब सेंसरी में क्या होता है, प्रोवाइड्स स्टिमुलेशन टू द प्लेजर जोन इन द ब्रेन। जो हमारा प्लेजर जोन होता है ब्रेन में, आप सब जानते होंगे कि ब्रेन में 4 हमारे पार्ट्स होते हैं, टेम्पोरल, फ्रंटल, ऑसिपिटल, ये सारे जो होते हैं इनके अपने अपने वो फंक्शन कर रहे होते हैं। तो जो अक्सर बच्चों को सेंसरी इश्यूज होते हैं, उनके बिहेवियर, जैसे एक बच्चे अगर हैंड फ्लैपिंग कर रहे हैं एक्साइटमेंट में लगातार, या कुछ भी बाइटिंग कर रहे हैं लगातार, कोई चीज माउथिंग कर रहे हैं, तो वो अक्सर सेंसरी इशू होता है। बीच घूमे जा रहे हैं, एक ही जगह पे चक्कर लगाए जा रहे हैं, इस तरह। और वो कब होते हैं, एनी टाइम, स्पेशली व्हेन एंग्शियस और एक्साइटेड। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि बच्चा जो है कोई अपने पसंद का शो देख रहा है तो वो लगातार जंपिंग किए जा रहा है, कंटिन्यूअस जंपिंग हो रही है। इसी तरह अगर वो एक्साइटमेंट में हैंड फ्लैपिंग कर रहे हैं, या इस तरह अगर वो गुस्से में है, कभी वो लगातार इस तरह आपको नोचना शुरू हो जाते हैं। तो ये कई दफा क्या होते हैं, ये सेंसरी इश्यूज होते हैं। तो इसमें वो क्या करते हैं, व्हाट टू डू, प्रोवाइड डिसलेरेशन टेक्निक्स एंड रीडायरेक्ट टू मोर एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स। हम उन बिहेवियर्स को, इसी में मैं सेंसरी में रिपीटेटिव बिहेवियर्स की भी बात करती हूँ, कि जो भी जैसे रिपीटेटिव बिहेवियर्स अगर हैं बच्चे के, तो हमने उनको मना नहीं करना कि डोंट डू लाइक दिस, डोंट डू लाइक दिस। हमने उसको अप्रोप्रिएट बिहेवियर में चेंज कर देना है, उसको हमने कोई रिप्लेसमेंट बिहेवियर देना है। अब रिप्लेसमेंट बिहेवियर क्या हो सकता है,
जैसे अगर बच्चा हैंड क्लैपिंग कर रहा है, जस्ट आस्क हिम टू क्लैप, क्लैप, रीडायरेक्ट हिम। इसी तरह अगर बच्चा गोल गोल घूम रहा है तो आप उसके साथ पोइम्स पढ़ना शुरू हो जाए, राउंड एंड राउंड द व्हील्स ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड, या आप उसको उसी में नंबरिंग करवाना शुरू कर दें, 1 सर्कल, 2 सर्कल। बच्चा एक ही कोई चीज कोई सीन बार बार देख रहा है तो हमने क्या करना है, उस सीन में से ही उसके लिए कोई लर्निंग तलाश कर लेनी है कि टीवी का कोई सीन है या कोई वर्बल स्टिमिंग कर रहा है, कोई वर्ड बार बार आ इस तरह बच्चे बोल रहे होते हैं, तो हम उसी साउंड से उनको वर्ड्स निकलवाना शुरू कर दें, एप्पल एप्पल इस तरह करके। तो ये चीजें हैं जिस तरह आप मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह कुछ बिहेवियर्स ऐसे भी होते हैं कि जो बच्चा कर रहा होता है एस्केप करने के लिए किसी काम से, उसमें क्या होता है कि व्हेन टास्क इज टू अंडर स्टिमुलेटिंग, हार्ड, इजी, बोरिंग और अनडिजायर्ड, तब वो बच्चे करते हैं। उसमें हमने क्या करना है, हमने उसको प्रोवाइड अ फर्स्ट देन व्हेन, मतलब पहले आप ये करो फिर आपको आप चले जाएंगे, इस तरह का हम उसको ये कर दें कि हमने उससे टास्क करवानी है, वी विल नॉट लेट हिम गो। इसमें फिर हम अपने रीइंफोर्सर्स यूज करते हैं। पहले हम बच्चे के रीइंफोर्सर्स चेक करते हैं कि उसके रीइंफोर्सर क्या है, 2-3 रीइंफोर्सर उसके हम निकालते हैं। इंशाल्लाह उस पर भी हम एक पूरा सेशन कर सकते हैं, रीइंफोर्समेंट इज कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक, लेकिन हम इस तरह वो करते हैं। उसके बाद उसमें प्रॉम्प्ट, ऑफर, चॉइस और ऑल्टर द लेंथ ऑफ टास्क। हम ये कह सकते हैं अगर बच्चा को इरिटेट हो रहा है, हम कहेंगे ठीक है चलो आप इतना काम कर लो, देन आई विल लेट यू गो, ठीक है, ओके जस्ट डू दिस देन यू विल गेट 5 मिनट्स ब्रेक। इस तरह हम ये डिफरेंट चीजें टेक्निक्स कर सकते हैं एज अ पेरेंट भी, एज अ थेरेपिस्ट। उस तरह अगर बच्चे का जो फंक्शन है बिहेवियर का वो अटेंशन सीकिंग है, तो उसमें हमने क्या करना है, हमने उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देनी है और अटेंशन देनी है बिफोर द बिहेवियर हैपेंस। कोशिश ये करनी है, अगर हमें लगता है कि इस वक्त बच्चे को हमारी अटेंशन चाहिए, तो हम बजाय इसके कि वो बिहेवियर करे उससे पहले ही हम उसको अटेंशन दे दें, और अगर वो बिहेवियर हो गया है उस बिहेवियर पे फिर हमने उसको अटेंशन नहीं देनी। We will be giving attention on the positive behavior, not on the negative behavior. Many a times what happens कि बच्चा जो है कर रहा है, जैसे he tapped me, आज ही मेरे साथ एक सीन हुआ, I was talking to someone else and my student just tapped me, उसने मुझे इस तरह किया because he was getting my attention. I didn't give him attention at that time, और फिर मैंने जब वो बैठा फिर मैंने उसको बाद में अटेंशन दी कि लुक वेरी गुड सिटिंग, गुड जॉब। तो जब बच्चा अच्छे काम कर रहा है, आराम से बैठा है, आपकी बात मान रहा है, उस वक्त आप उसको अटेंशन दें। जब वो बुरा कर रहा है उस वक्त अटेंशन ना दें। कई दफा बच्चे स्पिटिंग कर रहे होते हैं, आपको अटेंशन करवाने के लिए कोई भी गलत काम करें, उस वक्त उनको अटेंशन नहीं देनी, जस्ट इग्नोर, या उसको दूसरे रिप्लेसमेंट बिहेवियर की तरफ ले आएंगे। इसी तरह अगर बच्चा कोई चीज लेने के लिए बिहेवियर शो कर रहा है, तो उसमें हमने क्या करना है कि प्रोवाइड अ ट्रांजिशन एक्टिविटी ऑब्जेक्ट, इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी और प्रोवाइड DRA DRO। DRA है डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव बिहेवियर। ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए टर्मिनोलॉजीज, मतलब हमने कोई दूसरे जो चीज है दूसरे काम पे, दूसरे बिहेवियर पे, लाइक अगर बच्चा अपनी तरफ तवज्जो दिलाने के लिए हमें हिट कर रहा है तो हमने, या रो रहा है, हम कहेंगे उसको कहें दे दें, या उसको पॉइंटिंग करवा ले, जस्ट पॉइंट के ओके चलो आपको ये चीज चाहिए ना, पॉइंट करें इसको, फिर वो बच्चा पॉइंट करेगा तो हम उसको वो दे देंगे। तो इस तरीके से हम उसमें चलते हैं। अच्छा, अब जैसे हम ABC बिहेवियर को जब अंडरस्टैंड करते हैं, मैंने एंटीसीडेंट बिहेवियर और कॉन्सिक्वेंस का थोड़ा आपको बताया भी है कि एंटीसीडेंट क्या होता है, व्हाट हैपेंड प्रायर टू द बिहेवियर ऑफ कंसर्न, उसके बाद बिहेवियर क्या हुआ, और उसके बाद व्हाट हैपेंड आफ्टर द बिहेवियर वाज डेमोन्स्ट्रेटेड। ये चार्ट होता है। अब जिसकी एग्जांपल से ज्यादा आपको समझ आएगा कि थेरेपिस्ट पेरेंट इज टॉकिंग विद एन अदर एडल्ट,
अभी मैंने मिसाल भी दी। उसके बाद चाइल्ड थ्रोस आइटम अक्रॉस द रूम, therapist parent looks at child and explains to him that he needs to clean the toy up or starts interacting with the child again. अब ये क्या हुआ? Child learns that throwing gets attention from others. बच्चा जो था वो दो लोग बात कर रहे थे, उसने कहा कि मेरी तरफ तो अटेंशन ही नहीं है, he starts throwing the objects, और जैसे ही उसने थ्रो ऑब्जेक्ट करना शुरू किए, we gave him attention and he learned कि if I will do such sort of behavior I will be getting attention. तो ये उसको नेगेटिव अटेंशन मिल गई, हमने ये नहीं देनी। अगर वो इस तरह का बिहेवियर कर रहा है, थ्रोइंग कर रहा है, तो हमने उस वक्त उसको अटेंशन नहीं देनी। कोशिश ये करनी है कि हम इस बिहेवियर के अकर होने से पहले ही उसको अटेंशन दे रहे हो। अगर एक होता है प्रोएक्टिव प्लान, एक होता है रीएक्टिव प्लान। प्रोएक्टिव प्लान ये होता है कि जो हमें पता है कि हम बिहेवियर ना करूं उससे पहले ही सोच लें कि हमने ये करना है, कि हम बच्चे को पहले ही अटेंशन दे देते, ठीक है। एक होता है रिएक्टिव, अब बिहेवियर हो गया, उसने ऑब्जेक्ट्स थ्रो करना शुरू कर दिए, उसके बाद अब हमने क्या करना है कि हमने अब उसको अटेंशन नहीं देनी है, हमने उसको रीडायरेक्ट वैसे ही किसी चीज में कर देना है, उस वक्त नहीं, थोड़ी सी 1-2 सेकंड बाद कि आओ लेट्स डू दिस, फिर हम उससे वो चीजें भी उठवाएंगे। अगर उसने चीज फेंकी है तो हम उसी से उठवाएंगे, ताकि उसको पता हो कि यस आई हैव डन समथिंग रॉन्ग और मुझे उसको सही करना है। सो अब बिहेवियर मैनेजमेंट में क्या आता है कि इफ यू वांट समथिंग डिफरेंट देन यू गॉट टू डू समथिंग डिफरेंट। मेक सेंस? कि हमें कुछ चाहिए मुख्तलिफ, तो हमें करना भी तो कुछ मुख्तलिफ होगा ना। उसके लिए वो कहते हैं ना कि पेरेंट्स जो है वो खुद बहुत बड़े साइंटिस्ट होते हैं, वो नई नई चीजें इन्वेंट करते रहते हैं कि हमने इसके लिए क्या हम कर सकते हैं। और एक चीज जो बहुत जरूरी है कि चिल्ड्रन नीड्स इनकरेजमेंट लाइक अ प्लांट नीड्स वाटर। अपने बच्चों को छोटी छोटी बात पे इनकरेज करें, छोटी सा भी बिहेवियर उन्होंने अच्छा किया है, अच्छा काम कर रहे हैं, उस पर उनको जरूर इनकरेज करें कि यस गुड जॉब, वेरी गुड, और खुद भी खुश हो। हम अगर खुद हर वक्त टेंशन में रहेंगे, अल्लाह मैं क्या करूं, बच्चा ऐसा है, व्हाट शुड आई डू व्हेन, तो हमारा जो फेस एक्सप्रेशंस होते हैं, हमारे बिलीव्स होते हैं, वो ट्रांसफर हो रहे होते हैं बच्चे में, एंड वो चीज फिर आप उनमें भी देखेंगे, वो टेंशन ट्रांसफर होती है, एंड देन ऑब्वियसली बिकॉज दे कांट एक्सप्रेस इट, वो उनके बिहेवियर में शो होती है। सो जस्ट enjoy द पेरेंटिंग, और ये सोचें कि हमने एक एक भी छोटी छोटी भी उनकी अचीवमेंट हो ना, जस्ट सेलिब्रेट के वाओ माय सन माय डॉटर अचीव दिस थिंग, आई एम सो हैप्पी। और बच्चे को भी रीइंफोर्स करें जब भी वो अच्छा काम कर रहा हो। इवन ये कि जो हमारे स्पेशल नीड्स बच्चे हैं, जो स्पेक्ट्रम पे ADHD के साथ बच्चे हैं, अगर वो आराम से बैठे हुए भी हैं, आराम से सिटिंग उनकी है, आपकी बात सुन रहे हैं, तो उस चीज को भी रीइंफोर्स करें। वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी यू आर लिसनिंग टू मी, आई एम सो हैप्पी, इस तरह। अच्छा, अब हम बिहेवियर्स को मैनेज करने के लिए हम दो चीजें हैं, जैसे मैंने बताया बिहेवियर बीच में है, इधर एंटीसीडेंट है, इधर कॉन्सिक्वेंस है। अब हमने एंटीसीडेंट को हम या तो मैनेज करेंगे या कॉन्सिक्वेंस को मैनेज करेंगे, और हमारा बिहेवियर मैनेज हो जाएगा। तो अब देखें कि एंटीसीडेंट्स कम इन मैनी फॉर्म्स, some prop up bad behaviors, others are helpful tools that help parents manage potentially problematic behaviors before they begin and bolster good behavior। मतलब हमने बिहेवियर होने से पहले ही कोशिश करनी है कि हम ऐसा काम करें कि वो बिहेवियर अगर ना हो। अब क्या करना है, एंटीसीडेंट्स जो हमने अवॉइड करने कि हम ऐसा ना करें। Assuming expectations are understood। अब हम बच्चा है, हम ये सोच रहे हैं कि उसको पता है कि भाई मैं चाह रही हूँ कि कमरा साफ हो, वो आराम से बैठा हो, बच्चे को नहीं पता।
we need to tell. Okay, I want that you should clean up your room. You should sit nicely. We need to tell him. He doesn't know. Okay, this is one of the antecedent. और इसमें फिर क्या होता है, हम expect कर रहे होते हैं, बच्चा नहीं कर रहा होता, and we start like getting angry on him. ऐसा होता है ना. तो हमने ये एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी कि बच्चे को पहले से पता है कि what we want from. उसके बाद calling things out from a distance. कि बच्चे को दूर से अहमद लिसन, ये वो करें, इस तरह नहीं. Go near to your child, आराम से उससे बात करें, क्योंकि you know जो स्पेक्ट्रम पे स्पेशली बच्चे होते हैं, उनके आई कांटेक्ट का भी इशू आ रहा होता है, वो आपकी तरफ अटेंटिव भी नहीं हो रहे होते. इवन सेम गोस विद चिल्ड्रन विद ADHD. तो उनको हमने अपने पास जाना है एंड देन टॉक टू देम, और फिर उनको बताना है. ज्यादा घरों में जब मसले क्यों होते हैं, क्योंकि माएँ बैठी हुई हैं बेड पे, फादर्स हैं दूर से चीख रहे हैं, ये कर दो, ये कर दो. एक क्योटिक सिचुएशन हो जाती है, एक चीखो पुकार घर में शुरू हुई होती है. बच्चे हमारी बात समझ नहीं रहे होते और हम चीखो जोर जोर से पीछे बोल रहे होते. उसके बाद ट्रांजिशनिंग विदाउट वार्निंग. अब ये क्या है कि हम किसी मेहमान के घर आए हैं, कि कहीं पार्क आए हुए हैं, तो हम बच्चे को कह रहे हैं कि लेट्स गो, चलो चलो बस हम जा रहे हैं. We didn't warn him before. So obviously if he's playing with his friends, if he's enjoying the rides, he will get angry. No, I don't want to go. He will start showing his behaviors. So what we should do, we should warn him beforehand. Now after 5 minutes we will go. ठीक है. अब उसको पता है कि थोड़ी देर बाद, या अगर वो उसको टाइम का नहीं अंदाजा, तो हम उसको कह देंगे कि we will be going after some time. So just say bye bye to your friends, इस तरह करके, ताकि उसको भी पता हो. इसमें हम अक्सर टाइमर्स भी यूज करते हैं. जो बच्चे टाइम नहीं हम देख पाते, उनके लिए सैंड टाइमर्स होते हैं, वो यूज आप कर सकते हैं कि जब सैंड ये फिनिश हो जाएगा, that you can easily buy online to send timers. तो के then we will go. इसी तरह बच्चों को, कई बच्चे होते हैं कि जो नहाना उनको बहुत पसंद होता है, पानी में रहते हैं, तो उनके लिए भी यही चीज हम यूज कर सकते हैं कि ओके ये आपका सैंड टाइमर है, ये जब खत्म हो जाएगा then you will come out. इसी तरह मैं एक जो चीज करती हूँ और आप लोग भी करते होंगे, काउंट टिल 5. ओके, आई एम काउंटिंग टिल 5, 1 2 5 तक आपने आ जाना है. जैसे बच्चा अगर कोई टेंट्रम शो कर रहा है या कुछ, तो आप उसको इस तरह भी कर सकते हैं. उसके बाद आस्किंग रैपिड फायर क्वेश्चंस और गिविंग अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस. दिस आल्सो लीड्स टू प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स, क्योंकि हम जल्दी जल्दी बच्चे से कोई सवाल कर रहे हैं या जल्दी जल्दी उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो बच्चे इरिटेट हो जाते हैं. हमें अब खुद भी हम अगर ये सोचें कि कोई हमसे जल्दी जल्दी सवाल कर रहा है, जल्दी जल्दी हमें कह रहा है जल्दी से ये कर दो, जल्दी से किचन साफ करो, जल्दी से तैयार हो जाओ, बच्चों को तैयार करो, तो we will get irritated. So we also need to work on these things. These are all antecedents. ये वो चीजें हैं जो हमें बिहेवियर के होने से पहले ही अवॉइड करनी है, ताकि बिहेवियर ना हो. अब हम बात करेंगे करनी क्या चीजें, ये तो अवॉइड करने की हो गई, but antecedents should be embraced. Be aware of the situation. Consider and manage environmental and emotional factors. Hunger, fatigue, anxiety or distractions can all make it much more difficult for children to rein in their behavior. अब हमने पहले से, अब बच्चे को हम लेके गए हैं 1 hour ड्राइव पे, थेरेपी सेंटर बच्चा गया है, and he is hungry. So obviously he will show his behaviors. अब therapist is not getting to know कि क्या issue आ रहा है, why is child showing so much tantrums. So these things need to be considered beforehand कि हो सकता है वो he might be hungry, he might have fatigue,
तो इसीलिए जो एक कोलैबोरेशन होती है, एक पेरेंट्स थेरेपिस्ट की आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस, वो भी बहुत ज़रूरी है कि वो पूछे उनसे जब कि डज ही हैव हिज ब्रेकफास्ट, उसने कोई फटीक तो नहीं हुई, घर में कोई ऐसी बात तो नहीं है, मेडिकली वो साउंड है। तो ये चीज़ें, अब आज जैसे मेरा एक स्टूडेंट था, ही वॉज हैविंग टूथेक, अब वो आया सुबह, उनकी मदर ने मुझे बता दिया, तो आई ट्रीट हिम इन दैट वे, आई डिडंट बर्डनाइज हिम, बट स्टिल बिकॉज आई वाज नोइंग दैट ही इज हैविंग टूथेक, तो वो थोड़ा बेचैन हो रहा था, एंग्शियस हो रहा था। देन आई कॉल्ड हिज मदर दैट ही इज नॉट फीलिंग वेल। सो दीज आर द थिंग्स कि हमें पता हो कि अगर कोई बच्चे का बिहेवियर है तो उसकी क्या वजह है, और ये इसलिए हम वी शुड बी अवेयर ऑफ द सिचुएशन। उसके बाद एडजस्ट द एनवायरनमेंट। ये देखें, ये तस्वीर, अब बच्चे का होमवर्क टाइम है, सामने टीवी चल रहा है, हम बच्चे को कह रहे हैं डू योर होमवर्क, डू योर होमवर्क। हाउ विल ही बी एबल टू डू हिज होमवर्क? टेक हिम टू अ सेपरेट रूम, मेक हिज सेटिंग एंड देन आस्क हिम टू डू द होमवर्क, स्विच ऑफ द स्क्रीन्स। और ये होता है, इट्स सो मच कॉमन, हम लोग मतलब हमारे अपने हाथों में मोबाइल्स होते हैं, टैबलेट्स होते हैं, और हम बच्चे से ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो आराम से बैठ के अपना काम कर ले। ऐसा नहीं हो सकता, उनके लिए एक सेपरेट कॉर्नर हो, हमने उनकी एनवायरनमेंट उनके हिसाब से एडजस्ट करनी है। When it's homework time, for instance, remove distractions like video screens and toys, provide a snack, establish an organized place for kids to work, and make sure to schedule some breaks. Attention is not infinite, हाँ, और उनको ब्रेक्स देनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो अटेंशन टाइम होता है वो इन्फिनिट नहीं होता। अटेंशन टाइम भी हम आहिस्ता आहिस्ता बच्चे का इंक्रीज करते हैं। अगर हमने काम शुरू किया है, हम पहले उसको 10 to 15 मिनट्स कहेंगे कि आप 10 to 15 मिनट्स के बाद उसको एक ब्रेक दे देंगे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसका वो टाइम बढ़ाएंगे, लेकिन ब्रेक्स आर वेरी नेसेसरी। उसके बाद मेक एक्सपेक्टेशंस क्लियर, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, प्रोवाइड काउंटडाउन्स फॉर ट्रांजिशंस, यूज स्टॉप वॉच, लेट किड्स हैव अ चॉइस। चॉइस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी पॉइंट्स मैं आपको पिछली स्लाइड में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। किड्स हैव अ चॉइस, इसमें क्या होगा कि आपने अगर 2-3 एक्टिविटीज हैं, आप बच्चे से कहें कि ओके बट विच एक्टिविटी यू वांट टू डू, प्लेस इन फ्रंट ऑफ हिम 2 एक्टिविटीज एंड अलाउ हिम टू चूज। उससे उसकी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी, उसको ये फील होगा कि हाँ मुझे इंपॉर्टेंस दी जा रही है। इसी तरह जब आप मार्केट में जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, एक मदर ने मुझसे ये सवाल किया था कि मॉल्स में जाते हैं बच्चे बहुत परेशान करते हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं? तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि बच्चे को आपने लेके गए, आपने उसको अपनी पसंद की 2-3 चीजें अपने हाथ में रखी, उससे कहा इसमें से चूज कर लो जो आप समझते हैं कि बच्चे के लिए सेफ है, हार्मफुल नहीं है। तो उन चीजों में से बच्चा अपने लिए चूज कर लेगा। अब उसको क्या होगा कि या आई एम बीइंग गिवन राइट टू चूज, वो इससे मुतमईन भी होगा, और एक तरह से बात आपने अपनी बनवाई कि जो आप चाहते थे आपने उन्हीं चीजों में से उसको वो चीज दी। सो वी नीड टू बी क्लेवर एट दैट टाइम। अच्छा, कंसीक्वेंसेस टू अवॉइड। अब ये तो हो गया एंटीसीडेंट्स, बिहेवियर के होने से पहले जो चीजें हमने अवॉइड करनी थी या जो चीजें हमने करनी है। अब बिहेवियर के होने के बाद की क्या चीजें हैं जो हम अवॉइड कर सकते हैं। अब बच्चे ने जो है गिविंग नेगेटिव अटेंशन, बच्चे चीख रहे हैं, ठीक है, अब उस वक्त उनको नहीं देखना, जैसे मैंने पीछे भी बात की है, थ्रोइंग कर रहे हैं, उस वक्त उनको नहीं अटेंशन देनी है, ठीक है। उससे उनको क्या होगा, वो लर्न कर लेंगे ये बिहेवियर कि हाँ हम रोएंगे चीखेंगे तो हमें अटेंशन मिलेगी। वी नीड टू टीच देम द अप्रोप्रिएट वे टू गेट अटेंशन। उसके बाद डिलेड कॉन्सिक्वेंसेस, बच्चे ने कोई गलत काम किया है, ठीक है, अब आप उसको उसी वक्त बताएं कि यू डिड दिस थिंग रॉन्ग, ये नहीं कि अगले दिन आप उसको बता रहे हो कि तब आपने उधर ये काम गलत किया था। पनिशमेंट आपने फॉर द सेक ऑफ पनिशमेंट नहीं करनी। कई दफा ऐसा होता है कि हमने बच्चा कहीं बाहर था, उधर उसने मिसबिहेव किया, उसके बाद हम घर आके उसको पनिश कर रहे हैं कि वो तुमने देखो कितना गलत काम किया था और इस तरह पनिश किया।
आपने अगर उसको समझाना भी है, दैट शुड बी लाइक इन जनरल वे, नॉट रेफरिंग टू दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट। रात में बच्चे के साथ लेटे, वो बच्चों का टाइम होता है जिस वक्त वो बहुत जल्दी पिक करते हैं चीजें, जब वो नींद में होते हैं या सुबह जब वो उठे होते हैं और बेड पे होते हैं, उस वक्त उनका जो अनकॉन्शियस चीज होती है वो बहुत वर्क कर रही होती है और वो उसमें जाती हैं चीजें। तो उस वक्त उनको ये समझाएं कि हमने हाउ शुड वी बिहेव, हमें बिहेव कैसे करना चाहिए। ये नहीं कि हम बाद में डिले करके बच्चे को कॉन्सिक्वेंस दे रहे हैं, एंड दैट इज नॉट जस्ट अबाउट पनिशमेंट, इवन अबाउट रीइंफोर्समेंट। अगर बच्चे ने कोई अच्छा काम किया है, उसी वक्त उसको शाबाशी दें, वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी, कितना अच्छा काम किया आपने। अगर आपने उसको कोई टेंजिबल रीइंफोर्सर देना है, वो भी उसी वक्त देगा। एक जो टोकन इकोनॉमीज होती है, उसमें फिर चीज डिफरेंट आ जाती है कि आपने उसको टोकन दे दिया कि ओके, वो बच्चे को भी पता होता है कि हाँ, मैं ये 5 टोकन्स इकट्ठे करूंगा तो मुझे मेरी पसंद की ये चीज मिलेगी, 10 टोकन्स इकट्ठे करूंगा तो वो मिलेगी। ये इंशाल्लाह मैंने जैसे कहा, ये हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे एक्सप्लेन कभी। उसके बाद डिसप्रोपोर्शनेट कॉन्सिक्वेंस, ये क्या है कि मतलब कोई जरा सी बच्चे ने गलती की और हमने उसको बहुत ज्यादा सजा दी, ये भी नहीं। द रिवॉर्ड और कंसिक्वेंस शुड बी अकॉर्डिंगली। अगर कोई बहुत अच्छी अचीवमेंट की है, कोई बहुत अच्छा काम किया है, तो उसके हिसाब से, उसके लेवल के हिसाब से उतना बड़ा उसके लिए इनाम होना चाहिए। और कोई अगर छोटा कोई एक जैसे एक अटेम्प्ट अच्छा किया है तो उसके हिसाब से वो होना चाहिए। मतलब उसको पता हो कि इस चीज के लिए मेरा इतना रिवॉर्ड होगा, इस चीज के लिए मेरा इतना रिवॉर्ड होगा, प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। और पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस, अब पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि बच्चे ने बाप ने कहा कि जूते पहनो और बच्चे ने भागना शुरू कर दिया, और बाप ने कहा कि ठीक है चलो लाओ मैं पहना देता हूँ। तो इसमें क्या हुआ कि उसको एक पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस मिल गया कि अच्छा, इफ आई विल स्टार्ट रनिंग then I will not be asked to wear shoes on my own. What we are supposed to do, we should make him sit, ask him कि नहीं, you need to wear them on your own. ठीक है, we can help them out. हम उनको कह सकते हैं कि चले मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, लेकिन ये नहीं कि हम पूरा ही उस बच्चे को छोड़ के हम खुद वो काम शुरू कर दें। उसके बाद इफेक्टिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि पॉजिटिव अटेंशन फॉर पॉजिटिव बिहेवियर्स। जैसे मैंने बताया था आपको कि फौरन हमने पॉजिटिव अटेंशन देनी है पॉजिटिव बिहेवियर्स के लिए, नेगेटिव बिहेवियर पे हमने उसको अटेंशन नहीं दी। इग्नोरिंग एक्टिवली, मतलब अगर कोई बच्चा ने थोड़ा बहुत गलत काम किया है तो हम उसको इग्नोर कर देंगे। जैसे दिस शुड यूज ओनली विद माइनर मिसबिहेवियर्स, not aggression and not very destructive behavior. Active ignoring involves the deliberate withdrawal of attention when a child starts to misbehave. जैसा मैंने कहा कि वो बच्चे ने ऐसे करना शुरू किया तो I didn't pay him attention, मैंने ऐसे ही शो किया कि मैं उसकी तरफ, मुझे उसकी बात से फर्क नहीं पड़ा, और जैसे ही वो अपनी एक्टिविटीज के साथ बिजी हुआ then I gave him attention. जैसे ही उसने अपना काम क्लीन अप किया then I gave him attention कि हाँ, that you did good, then I praised him, yes, very good, good job, इस तरह। रिवॉर्ड मेन्यूज और टोकन इकोनॉमीज। रिवॉर्ड मेन्यूज यही जो आप रीइंफोर्सर्स के उसको डिफरेंट दिखा सकते हैं कि यू विल बी गेटिंग दिस, और टोकन इकोनॉमी जैसे मैंने बताया। और टाइम आउट्स जो हैं टू एजुकेट चाइल्ड दैट दे हैव डन रॉन्ग। टाइम आउट ये नहीं है कि आपने बच्चे को सजा दे के एक तरफ खड़ा कर दिया, उसको बताना है एक तो कि आपने ये चीज गलत की है, इसलिए देखो आप अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं खेल पा रहे, आप इधर बैठेंगे, आप सोचें कि आपने क्या चीज गलत की है। उसको जस्ट लेट हिम थिंक कि there is something wrong which he has done, because of which he has been withdrawn from playing, he has been asked to sit alone. लेकिन ये नहीं है कि अगर बच्चा कोई काम कर रहा है तो वी विल लेट हिम गो। अगर उसको टाइम आउट मिला है then when his behaviors got managed then bring him back.
and make him do that task. उसको हमने लीव नहीं करना कि नहीं ओके यू कैन गो, हमने उसको ये पता हो कि मुझे काम, अदरवाइज वो लर्न कर लेगा कि ठीक है मैं बिहेवियर शो करूंगा, मुझे टाइम आउट मिलेगा। कई बच्चे होते हैं ना ऐसे, हमारे हम भी न्यूरोटिपिकल बच्चे भी करते हैं, उनको पता है कि अगर मैं शरारत करूंगा टीचर निकाल के बाहर खड़ा कर देंगी, हैंड रेस करवा देंगी और मेरी काम से छुट्टी हो जाएगी, तो वो चीज बार बार करेंगे। लेकिन हमने ऐसा नहीं करना, हमने बच्चे को वो काम बाद में करवाना है, ये रिटर्न टू द टास्क और सेट रूल्स एंड फॉलो देम। और जो आपने रूल सेट किया है, जैसे अगर आपने टाइम आउट का किया हुआ है कि जब बच्चा काम डाउन होगा, सही बिहेव करेगा, देन ही विल बी रिटर्न बैक टू हिज पोजीशन, तो उसको फॉलो करें, डोंट चेंज देम। उसके बाद ये द बिहेवियर इंटरवेंशन प्लान जब हम बनाते हैं, ये अब मैंने आपको बताया, हमने सबसे पहले क्या करना है, एबीसी चार्ट बनाया। ये पेरेंट्स घर में भी सिंपल कर सकते हैं, अगर उनके बच्चे का कोई प्रॉब्लम बिहेवियर हो रहा है तो आपने जो एबीसी चार्ट मैंने शेयर किया है उसको आप बनाएंगे, उससे आपको पता चलेगा कि अगर ये बिहेवियर कंटिन्यूसली हो रहा है तो वो किस मौके पे हो रहा है। क्या वो कोई चीज हासिल करने के लिए करता है बच्चा, या वो भागने के लिए कर रहा है, किसी चीज से अटेंशन हासिल करने के लिए कर रहा है, किस काम के लिए कर रहा है, तो उसके हिसाब से उसका हमने फंक्शन डिसाइड कर लिया, ठीक है। और अब हम उसका इंटरवेंशन प्लान बनाएंगे। अब इंटरवेंशन प्लान में क्या आता है, एक तो इज डेवलप्ड फ्रॉम द स्टूडेंट्स एफबीए, ये फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट, वही जो फंक्शन हमने उसका आइडेंटिफाई किया। उसके बाद उसकी आईपी बनती है, आईपी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, के हर बच्चा डिफरेंट होता है, उसका प्लान डिफरेंट होता है, तो उसके हिसाब से उनका इंडिविजुअल प्लान बनता है। उसके बाद पुट द स्टूडेंट्स नेसेसरी सपोर्ट इन प्लेस, जो जो चीजें आप समझते हैं कि इस वक्त उसको जरूरत है वो उसकी जगह पे हो, उसका सिटिंग अरेंजमेंट हो, उसके लिए जो रिप्लेसमेंट बिहेवियर है वो मौजूद हो। इम्प्लीमेंट प्लान इन क्लास, उसको क्लास में घर में उसको इम्प्लीमेंट करें और फिर उसको इवेलुएट करें कि वो कितना वर्क कर रहा है। इसी तरह कंपोनेंट्स ऑफ बिहेवियर इंटरवेंशन प्लान ये होते हैं कि इंफॉर्मेशन ऑन ऑल इन्वॉल्व, कौन कौन से लोग उस प्लान को बनाएंगे, लाइक स्पेशल एजुकेटर, बिहेवियर थेरेपिस्ट, पेरेंट, ये सारे लोग आ जाएंगे। रिप्लेसमेंट बिहेवियर क्या होंगे, टीचिंग स्ट्रेटजीज क्या होंगी, डाटा कलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, स्टूडेंट सपोर्ट। इसकी एग्जांपल ये मैंने एक आप लोगों के लिए बनाई है। इस तरह का हम बना सकते हैं कि जैसे बिहेवियर था, प्रॉब्लम बिहेवियर, समीर इज ऑलवेज क्राइंग इन क्लास, समीर लगातार क्लास में रो रहा है, उसका फंक्शन हमें पता चला एबीसी चार्ट से कि वो काम से भागना चाहता है। डिजायर्ड बिहेवियर हमारा क्या है कि अली शुड कंप्लीट हिज डेली टास्क क्वाइटली, तो उसके लिए प्रोएक्टिव प्लान कि जो हम पहले से प्लान कर लेंगे कि ही विल बी शोन अ चार्ट ऑफ फर्स्ट दिस देन दिस, फर्स्ट वर्क देन ही विल गेट 5 minutes रेस्ट आफ्टर एवरी टास्क, ठीक है। तो हमने ये एक उसको समझा दिया बच्चे को, फर्स्ट दिस देन यू विल गेट प्ले टाइम और इस तरह। और अगर बिहेवियर हो गया कि ही स्टार्टेड टू क्राई, देन व्हाट वी विल डू, he will not be allowed to escape and reinforcers will be used to keep him seated and then he will be reminded of what is demanded from him. फिर हम उसके reinforcers की जो लिस्ट हमने बनाई है कि ये उसका reinforcer है, वो रखेंगे कि ओके यू नीड टू वर्क, यू विल बी गेटिंग दिस थिंग, उसका वो काम करवाया। और हम उसको बताएंगे कि देखें आपसे आप अगर ये काम कर लोगे देन यू विल गेट योर गुड। reinforcers इसके जैसे रेस्ट है, बिस्किट्स हैं, पॉइंट्स हैं, पर्सन इन्वॉल्व आ गया, डाटा कलेक्शन। सो अ चाइल्ड हु कांट बिहेव, इफ अ चाइल्ड डजंट नो हाउ टू रीड वी टीच, इफ अ चाइल्ड डजंट नो हाउ टू स्विम वी टीच, इफ अ चाइल्ड डजंट नो हाउ टू मल्टीप्लाई वी टीच, इफ अ चाइल्ड डजंट नो हाउ टू ड्राइव वी टीच, इफ अ चाइल्ड डजंट नो हाउ टू बिहेव वी टीच और पनिश। I'll leave all of you with this question. We need to think on it. Okay, like we teach all the things, all the activities, we also need to teach the correct behavior. What is demanded from them? Obviously, it's not an easy task. इसके लिए आपको बहुत consistency, punctuality, सब कुछ की जरूरत है. Hard work, everything is needed. But it will be achieved.
That's for sure. Thank you so much from my side. Any questions? Yes, thank you so much, Nadia ji. I mean, very good and detailed explanation of every topic. I'm sure most of the questions has been answered. मतलब काफी सारे जो questions पूछे गए हैं चैट बॉक्स में, मुझे लग रहा है कि काफी आंसर हो चुके हैं, बिकॉज इंडिविजुअली हम लोग देख रहे हैं कि अगर आप ABC फॉलो करते हैं तो काफी आपको क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं कि क्यों बाइटिंग कर रहा है, क्यों थ्रो, क्यों शाउटिंग कर रहा है, सब कुछ कन्वे करने के लिए। आई मीन कुछ तो उनकी नीड्स होंगी जो कन्वे करना है, और तभी वो ये भी करते हैं। सो बट स्टिल काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं। मैं जनरलाइज अगर हम लेते हैं कि ब्रशिंग और बेदिंग, आई थिंक आपने जो चार्ट दिखाया है उसमें काफी है कि व्हाट अबाउट किड्स डजंट लाइक ब्रशिंग एंड बेदिंग। Brushing it एंड बेदिंग, नहाना नहीं चाहते हैं, ब्रश नहीं करना चाहते हैं, okay. बिहेवियरल इश्यूज। तो मैं जनरलाइज ही आपसे एक ले लेती हूँ। जी जी ओके। ब्रशिंग के लिए यही है कि हम एक तो मॉडलिंग कर सकते हैं, उनके सामने खुद ब्रश करें। साथ में आजकल ऐसी पोएम्स इतनी आई हुई हैं बच्चे को टीथ ब्रशिंग सिखाने के लिए, टॉयलेट ट्रेनिंग करने के लिए, वो बहुत वर्क करती हैं। वो बच्चे के साथ लगा दें, उसको साथ साथ उसके मॉडलिंग करें, खुद वो काम करें। और ये कि उसके लिए भी आप हर चीज के लिए आप कोई रीइंफोर्सर रख सकते हैं, क्योंकि इफ यू विल brush you will get this thing of your choice। इसी तरह बातिंग के लिए उनको बताएं कि अगर बच्चे को समझ ही नहीं है कि किस तरह करनी है, सीक्वेंस भी नहीं पता, तो उसके लिए सीक्वेंस चार्ट्स होते हैं, वो आप डिफरेंट लगा दें वॉशरूम में कि अगर आपने टीथ ब्रश करना है, फर्स्टली यू नीड टू टेक इट आउट। वो पूरा एक प्रोसेस होता है चेनिंग, जिसमें हम सिखाते हैं बच्चे को कि कोई भी टास्क हमने उसको डेली लिविंग स्किल सिखाने, तो वो सिखाएंगे। लेकिन जो अगर उन्होंने ये सवाल किया है कि इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है, तो वही बात है कि उसके लिए रीइंफोर्सर और खुद मॉडलिंग करके दिखाएं और उसको अपने साथ साथ करवाएं एक फन वे में, ये चीज कुछ कर सकते हैं। कि जैसे मेरे बच्चों को वही वो सेंसरी इश्यूज भी हैं, तो मतलब वही ब्रशिंग के लिए अवॉइडेंस होता है, तो वो भी एक बिल्कुल सेंसरी भी होते हैं, सेंसरी इशू। हाँ, मेरे छोटे बच्चे के है, तो आई कैन रिलेट दिस। बिल्कुल। तो आप उसके लिए क्या करती हैं सेंसरी के लिए? नहीं, डिसेंसिटाइजेशन इज द मेन थिंग है। मैं धीरे धीरे यू हैव टू, जैसे मैं अपने बच्चे को धीरे धीरे इंट्रोड्यूस किया है ब्रशिंग। बिल्कुल। मैं जब करती हूँ वो पहले देखता था, फिर यही मॉडल मसाज और वो करके धीरे धीरे से कोई 1 मिनट के लिए, फिर पहले उंगली से, फिर ऐसे धीरे से ब्रशिंग करना, वो भी शुरू है। और वो खाली मेरे एक्चुअली जी जी एक्चुअली बहुत सारे जो बिहेवियरल इश्यूज है हम समझते हैं कि इट इज रिलेटेड टू ऑटिज्म, हालांकि नॉन ऑटिस्टिक बच्चों में भी ब्रशिंग, बाथिंग, ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं, है ना। तो उसको हम डिफरेंट बच्चों के हिसाब से फिर डील करते हैं ना। जी जी और जी इसमें कुछ और जो क्वेश्चंस आए हैं उसको मैं थोड़ा सा जनरलाइज कर दूं। जी जी एक तो ये क्वेश्चन है कि आई थिंक फाइका शायद नाम है, उन्होंने कहा है कि 2.3 इयर्स का उनका बेबी है, बट नॉट डायग्नोस्ड एज ऑटिज्म, हाँ लेकिन उसके जो साइन सिम्टम है वो ऑटिज्म में फिट हो रहे हैं। तो आई थिंक इसका तो सिंपल आंसर ये है कि वो कहीं पे कांटेक्ट करके उसकी डायग्नोसिस करवाएं, पहले खुद स्क्रीनिंग करें, है ना। और मैं नादिया से कुछ और चीजें पूछूंगी जो लोगों ने किया है कि ईटिंग ऑल द टाइम, कोई बच्चा है जो कि सारे वक्त खाता है तो क्या करें। दूसरा ये क्वेश्चन है कि ड्रॉ शर्ट इन फ्रंट ऑफ ऑल, यानी अचानक से वो नेकेड लोगों के सामने हो जाता है, जो कि अच्छा नहीं फील होता। चलो आप इसको करें, फिर मैं कुछ और क्वेश्चंस भी जो लोगों ने किए हैं वो मैं आपसे करती हूँ ना। जी जी एक तो ये कि लगातार खाता है तो उसका ऑब्वियसली ये अक्सर बच्चों के साथ मसला होता है, तो उनका हमने खुद मैनेज करना है एज अ पेरेंट। उसका टाइम टेबल बनाए कि ओके दिस इज द पोर्शन, उसको खुद पोर्शंस में डिवाइड करके दें, और फिर कुछ फ्रिज में ताला लगा लें
क्योंकि मैं खुद एक ऑटिस्टिक बच्चे की, जो बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे है, उसकी मदर भी हूँ, तो ये चीजें खुद भी फेस करती हूँ। इस वजह से यही करते हैं कि बच्चे को एक उसका टाइम टेबल बना हुआ है कि 3 टाइम्स डे उसने प्रॉपर मील लेना है, बीच में उसने कुछ जो जो चीज लेनी है, और बाकी टाइम आप उसका ताला लगा लें। और अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे फिर ट्रेन हो जाते हैं कि या अब मेरी टमी बढ़ गई है, अब मुझे और नहीं चाहिए। तो कई कुछ बच्चों के साथ ये मसला होता है, वाकई में यू आर राइट इन दैट रिगार्ड। लेकिन इसका यही है कि पेरेंट्स नीड टू बी विजिलेंट और उनको पोर्शंस में दें, बिकॉज दे कैन अंडरस्टैंड कि कितना पोर्शन एक बच्चे के लिए नीडेड है, और दे नीड टू कंट्रोल इट। And being naked in front of all. जी, बीइंग नेकेड अब वही है कि उसमें सोशल स्टोरीज के थ्रू हम हेल्प ले सकते हैं कि देखो ये ऐसे कपड़े पहनते हैं ये, और जब इस तरह हो जाए, जस्ट टेक हिम टू द मिरर एंड जस्ट मेक हिम सी कि देखो यू आर नॉट लुकिंग नाइस। हम सब ने कपड़े पहन के रखते हैं। इसमें बार बार आप जब बच्चे को ये चीज कहेंगे तब वो रजिस्टर कर लेगा कि नहीं मुझे पहन के रखनी। और फौरन एक चीज, क्योंकि ये मसला मेरे अपने बेटे के साथ भी था, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये चीज नहीं है, क्योंकि उसको बार बार जैसे ही वो उतारता था, आई जस्ट आस्क हिम टू वेयर दैट अप। फौरन घर में जितने भी लोग हैं, जस्ट नॉट लेट हिम बी नेकेड। फौरन उनको कहें कि नो शेम शेम, जस्ट वियर इट जल्दी से। मतलब वी नीड टू मेक हिम रियलाइज दैट दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल बिहेवियर, नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। एंड दैट गोज विद एवरी बिहेवियर। इवन अगर बच्चा आपको हिटिंग कर रहा है या लगातार जंपिंग कर रहा है आपके ऊपर, कई दफा ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो एक कहते हैं कोई बात नहीं करने दो, बच्चे के साथ ये मसला है, दे जस्ट इग्नोर, या कोई इस तरह की चीज जो उसके लिए हार्मफुल है, ही इज ईटिंग दैट थिंग, यू नीड टू से हिम नो एवरी टाइम। ये नहीं कि आपने एक दफा नो कर दिया और अगली दफा यू लेट हिम डू दैट। यही चीज ये कपड़ों के साथ भी, कपड़ों की एग्जांपल के साथ भी है कि उसको हर दफा कहना है, जैसे ही वो तारीख जल्दी जल्दी पहले शिम शिम शिम। फिर इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि थोड़ा सा सिमिलर हैं। एक तो हिटिंग अदर्स एंड देन स्क्रैचिंग मी विद नेल्स ऑन फेस नेक एंड हैंड, यानी कि डिफरेंट टाइप्स का वो एग्रेसिवनेस को आई थिंक ये कई दफा ये सेंसरी भी होता है, जैसे हर्षली ने भी कहा। और उसमें ये होता है कि आप बच्चे को कोई भी ऐसा स्क्विशी टॉय वगैरह, प्ले डो, इस तरह की चीजें हाथ में दे दें कि वो उसके साथ खेलने। उसको बॉल्स होती हैं डिफरेंट, इवन अगर जैसे माउथिंग इशू है तो उसमें आप ट्वी ट्यूब्स दे दें, कोई इस तरह की, बच्चे को गाजर दे दें, बादाम उसके मुंह में रख दें, इस तरह की चीजें जो है आप यूज कर सकते हैं। तो वही बात है, जब तक फंक्शन पता नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कह सकते कि अगर उसका स्क्रैचिंग इशू है तो वो क्यों है, या हिटिंग इशू है तो वो अगर किसी स्पेसिफिकली किसी वक्त करता है तो वो हमें देखना होगा कि किस वक्त करता है। और अगर तो वो लगातार इस तरह करते हैं तो दैट इज सेंसरी का हमें इसी तरह पता चलता है कि वो कंटिन्यूअस होता है अक्सर। बाकी जो बिहेवियर्स होते हैं वो कभी कभी आते हैं, और उसमें हमने देखना होता है कि वो कब आ रहा है बिहेवियर और उसकी क्या वजह। इसमें मैं कुछ और चीज भी थोड़ा सा ऐड कर दूं। नादिया ने बहुत अच्छा इसका आपको बताया है, लेकिन इसमें जैसे कि पेरेंट्स है ना, अक्सर लिखा होता है पेरेंट्स काउंसलिंग, तो वी नीड टू क्लासिफाई पेरेंट्स। तो जो पेरेंटिंग है वो एक तो हम कहते हैं कि अथॉरिटी, जो बहुत अथॉरिटी अपनी रखते हैं ना, कि यानी बच्चे की कुछ सुननी नहीं है, सिर्फ अपने स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हुए हैं। फिर एक अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग होती है जो कि बच्चे की भी सुनते हैं और अपने कुछ डिसिप्लिन बनाए हुए हैं। फिर थर्ड टाइम की जो होती है वो ये होती है कि परमिसिव पेरेंटिंग। तो परमिसिव पेरेंटिंग में क्या होता है कि कुछ रूल्स बनाए हैं लेकिन बच्चे को हर चीज में परमिट कर देते हैं, तो उससे भी जो है ना बच्चा फ्री होता जाता है और अपनी चलाने लगता है ना। और फिर उसके बाद ऐसे होते हैं जो इन्वॉल्व ही नहीं होते, निग्लेक्टेड जो बच्चे होते हैं, जो पेरेंट्स उनको निग्लेक्ट करते हैं। तो पहले तो हमको अपने को भी क्लासिफाई करना चाहिए कि हम कहाँ फिट हो रहे हैं, कहीं हमने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स तो नहीं बनाए हैं, हम बच्चे की कुछ सुन रहे हैं कि नहीं, उसकी भी कोई परमिशन है कि नहीं।
जो बड़े प्रोग्राम्स घर में होते हैं, जो अबव 5 इयर्स बच्चे, उनको इंक्लूड करके हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो हम कहाँ जाएं, तो ये सारी चीजें हम सबको देखनी चाहिए। और फिर जैसे कि ये हिटिंग और वायलेंट बिहेवियर की बात है, तो पहले तो हम जाहिर है कि बिहेवियर थेरेपी इंटरवेंशन करेंगे, लेकिन समटाइम्स यू नीड, जब सेफ्टी इशू हो बच्चे की और किसी और की, तो फिर मेडिसिन आ जाती है ना। तो ये थोड़ा सा आई थिंक हमें सोचना चाहिए जहन में। अच्छा अच्छा, डॉक्टर और सर, क्वेश्चंस हैं एक। जी जी। जी रीइंफोर्समेंट और ब्राइबरी का डिफरेंस, ये यस यस, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट अक्सर कंफ्यूजन बड़ी होती है लोगों इम्पोर्टेंट, को। बिल्कुल है। तो ब्राइबरी ये होती है जो आप बिहेवियर से पहले ही बच्चे को आपने बिस्किट दे दिया, ये लो मैं तुम्हें बिस्किट दे रही हूँ, तुम जल्दी हाँ से ये काम कर दो, दैट इज बिल्कुल, हाँ ब्राइबरी। रीइंफोर्समेंट है कि आप कहें आई हैव दिस बिस्किट फॉर यू, जस्ट डू दिस वर्क देन यू विल गेट दिस, फर्स्ट दिस देन दिस, सो यस, दैट इज रीइंफोर्समेंट। तो ये अक्सर लोगों गुड। को कंफ्यूजन होती है, मैंने कहा ये clear हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कर हम। दूं। और और मेरे ख्याल है और तो कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं है, तकरीबन जो हमने आंसर कर दिए हैं। और कोई लिखिंग, टू मच शाउटिंग एंड स्पिटिंग, और एक हाँ, मदन ने कहा है कि वो हर चीज को बच्चा डर्ट को लाइक वो चाटने लगता है, तो मेरा ख्याल है कि ये भी वही अटेंशन डाइवर्ट करने वाली बात है। और फिर हमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, जैसे हमने के पाइका की बात की थी, तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज नॉन ऑटिस्टिक में भी होती हैं, और ऑटिस्टिक में भी उनमें ज्यादा इस वजह से हो सकती हैं कि उनके प्रेफरेंसेस, उनके सेंसरी इश्यूज होते हैं। तो फिर हमें दोनों चीजें जहन में रखनी चाहिए आई थिंक। और किसी का ये मेरा ख्याल है कि हैंड रेस है, रेशमा, रेशमा शेख, उनका कोई क्वेश्चन मेरे पास नहीं आया है, इफ यू Yes, वांट ma'am. टू। हाँ. Yes, ma'am. I want to ask you about my student. He is a very hyper child. तो अगर हम उसको म्यूजिक देंगे, म्यूजिक थेरेपी जो होता है, थेरेपेटिक लिसनिंग होता है, अगर वो हम उसको दे तो उसका हाइपर में कुछ फर्क होगा और या उसके बिहेवियर में कुछ चेंज होगा, ये मेरा क्वेश्चन है एक्चुअली, कि वो कुछ काम करेगा म्यूजिक देने पर, म्यूजिक थेरेपी। हाँ, आप इसका जो आंसर है, एक्चुअली हमारी एक आई थिंक इन द मंथ ऑफ अप्रैल हमारी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उसमें काफी एक्सपर्ट्स थे, और उन्होंने मैनेजमेंट ऑफ ऑटिज्म पूरा डिस्कस किया था, क्योंकि देयर इज नो ट्रीटमेंट ऑफ ऑटिज्म बट मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में डिफरेंट ऑप्शंस उन्होंने लिखे थे, उसमें एक म्यूजिक थेरेपी भी, लेकिन उसमें जो उनकी रिसर्च स्टडीज थी वो इतनी ज्यादा आई थिंक पॉजिटिव नहीं थी, मतलब हम उसको एक रूल नहीं बना सकते। मे बी किसी बच्चे में वर्क करे, लेकिन हम उसको सजेस्ट नहीं कर सकते। जैसे यू कैन ट्राई, बट मतलब हम उस पर कुछ कंफर्म आपको नहीं कह सकते कि म्यूजिक थेरेपी से असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा ना। जी नादिया, आप बताएं कुछ। जी बिल्कुल, कई दफा फर्क पड़ भी जाता है, वही बात है, हम्म, वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बिल्कुल। बच्चे का इशू क्या है, सॉरी मुझे समझ सही क्लियर नहीं आया, इशू इशू क्या है बच्चे का? जो बच्चा है ना, वो बचपन में जब बॉर्न हुआ था तब इज अ नॉर्मल चाइल्ड, बट धीरे धीरे है ना उसका जो स्पीच था ना, स्पीच वाज अ प्रॉब्लम। तो अभी ही इज 7 years ओल्ड, बट स्पीच इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम राइट नाउ। अभी वो कम्युनिकेट में जीरो है, बट वो सेंटेंसेस बोल देता है, वर्ड्स बोल देता है, बट हम उसको बाहर खेलने के लिए, प्ले करने भेजते तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। तो हमें किसी ने सजेस्ट किया कि थेरेपेटिक लिसनिंग कराने से उसका कम्युनिकेशन बिल्डअप हो जाए, यू नेवर नो। तो आई माई वो तो सेल्फ इज कंफ्यूज्ड कि हमें उसको थेरेपेटिक लिसनिंग कराना चाहिए, उसका कम्युनिकेशन बिल्डअप हो जाएगा मेरे थेरेपेटिक ख्याल से लिसनिंग फंक्शनल कराने। लैंग्वेज डेवलप करने के लिए म्यूजिक थेरेपी इतना वर्क नहीं करती है। इसके लिए यही है कि आप खुद से बच्चे के साथ बातें करें, डिफरेंट सिनेरियोस में बातें करें, और ये कि उसके साथ अगर पोइम्स भी आप पढ़ रही हैं तो खुद पढ़ें, लाइक खुद उसके साथ गाएं, इंस्टेड के हम अक्सर पेरेंट्स करते हैं कि टीवी पे लगा दिया, बच्चा उसके साथ बोल रहा है, लेकिन उसमें उसकी लैंग्वेज जो है या कम्युनिकेशन है वो डेवलप नहीं हो रही होती।
यही अगर हम उसको कहेंगे कि ओके द व्हील्स ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड, राउंड कैसे होता है, राउंड राउंड एंड राउंड, इस तरह, तो इससे उसकी कॉम्प्रिहेंशन डेवलप हो रही होती है कि व्हाट दैट वर्ड मीन्स। तो आई सजेस्ट, मतलब दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस के दैट वर्क्स मोर। और क्योंकि बच्चा और ज़ाहिर की स्पीच थेरेपी की, आई थिंक स्पीच थेरेपी की उसको जरूरत है। बिल्कुल स्पीच थेरेपी की जरूरत है मोर देन म्यूजिक थेरेपी। बिल्कुल। अच्छा, सना जमाल ने ये पाइका के ऊपर ही बात, मेरे ख्याल की उसकी बात की कि मैं सारे उसको मल्टी वाइटामिन सब दे रही हूँ लेकिन फिर भी पाइका नहीं गया। तो इसमें जो है ना, यू हैव टू कंसल्ट सम डॉक्टर और पीडियाट्रिशियन, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली एज ए पीडियाट्रिशियन आई कैन से दैट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कॉजेस पाइका है। और ये विशेष साइकिल होता है कि जितना वो मिट्टी और ये डिफरेंट चीजें खाते हैं उनको और ज्यादा डेफिशिएंसी होती है, वॉर्म्स भी हो जाते हैं। तो इट इज बेटर कि हीमोग्लोबिन उसका चेक हो, उसको पता चले कि कौन से टाइप का उसको एनीमिया और उसका ट्रीटमेंट किया जाए। आई थिंक अब हमने क्वेश्चन आंसर का हो गया है। अब कोई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर आंसर्ड आई थिंक। क्या कोई पूछ रहा है रेनफोर्समेंट एज अ फूड दे सकते हैं क्या, क्योंकि फिर वो आदत हो जाती है। कि रेनफोर्सर्स क्या क्या मतलब जनरली हम लोग यूज कर सकते हैं? जी, रीइंफोर्सर्स जो है आपके वर्बल रीइंफोर्सर भी होता है, जैसे आपने बच्चे को कह दिया वेरी गुड, गुड जॉब, और हक भी होता है कि एक दफा उसको सोशल रीइंफोर्सर कहते हैं। फिर आपके जो अगर आपने स्टार्ट में बच्चे को कोई इडेबल देना है ऐसा रीइंफोर्सर, तो वो भी आप ऐसे दे सकते हैं कि जैसे अगर एक बिस्किट या चिप्स देना है तो उसके 8-10 टुकड़े कर लें, ताकि वरना इट क्रिएट्स हाइपर एक्टिविटी, और जैसे जंक फूड इज नॉट राइट फॉर द हेल्थ। तो वो आप हर जो उसका करेक्ट रिस्पॉन्स है उस पर आप एक बाइट दे दें। तो ये इस तरह डिफरेंट रीइंफोर्सर्स वर्क कर सकते हैं। कई दफा ऐसा होता है कि जस्ट एट द स्टार्ट यू नीड टू यूज एडिबल एज अ रीइंफोर्सर, लेटर ऑन वो बच्चे के लिए हाई 5, हाई 10, गुड जॉब, ये भी चीजें बहुत अच्छी वर्क करना शुरू हो जाती हैं। और दूसरे आपने फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे हर चीज को, प्रॉम्प्ट को भी हम फेड आउट करते हैं, रीइंफोर्सर्स को भी फेड आउट करते हैं कि उनको कम करते रहते हैं। जैसे जैसे मतलब बच्चा जो है वो एक लाइन में आ जाता है, उसका एक रूटीन सेट हो जाता है, तो वी फेड आउट ऑन द रीइंफोर्सर्स एंड प्रॉम्प्ट्स। इस पे मेरे ख्याल से हर्षली हम बाद में कभी कर लेंगे, क्योंकि ये हाँ पूरा एक टॉपिक है। एक टॉपिक है, बिल्कुल। हाँ हाँ। एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि मैं अभी आंसर कर सकती हूँ, कि वो टंग टाई से किसी ने पूछा है कि इज देयर एनी प्रॉब्लम इन स्पीच इफ द बेबी हैज टंग टाई। तो टंग टाई जो है ना, वो उसके बहुत से ग्रेड्स होते हैं, बहुत ही मामूली सा अगर होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू कैन सी दैट, जैसे कि मैं इस वक्त बोल रही हूँ तो हमारी टंग बाहर नहीं आ रही है, तो जो स्मॉल टंग टाई है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हालांकि ज्यादातर जो है उसको उर्दू हिंदी में तातवा, बहुत से लोग कहते हैं कि तातवा है ना तो इसलिए बच्चा नहीं बोल रहा है। ज्यादातर ग्रैंड पेरेंट्स इस पे इंसिस्ट करते हैं कि नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, तुम तातवा कटवा लो। तो ऐसा नहीं होता, उसको आप किसी से चेक करवाएं। अगर वो इतना बड़ा है कि वो टंग की टिप तक आ रहा है, देन यू नीड टू कट इट, है ना, अदरवाइज नॉट, है ना। तो ये जाहिर है कि वो एग्जामिन करना और उसको देखना और इंडिविजुअली असेस करना ही जरूरी होता है। मेरे ख्याल है बाकी एक स्लीप डिसऑर्डर के ऊपर है, वो एक लंबा क्वेश्चन है, तो वो हम फिर कभी इंशाल्लाह ताला उसको आंसर कर देंगे ना। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, मैं पूछ सकती हूँ? यस। मैम रिलेटेड टू हिटिंग और बाइटिंग और सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर पे ही है। ये हमेशा नहीं होता है, ये सिचुएशनल है। लाइक अगर हमने कभी उसको डिनाई किया, वो कुछ पूछ रहा है, फॉर एन एग्जाम्पल उसको राइम्स देखना है और अभी राइम्स का टाइम नहीं है, और मैंने बोला अभी नहीं, राइम्स अभी नहीं देखेंगे, थोड़ी देर के बाद देखेंगे, फिर उसका ये बिहेवियर शुरू हो जाता है। अदरवाइज वो बहुत सेटल्ड और हैप्पी चाइल्ड है। सही। तो देखें, इससे ये पता चला कि दैट इज फॉर टेंजिबल, कोई भी चीज हासिल करने के लिए है, तो उसके लिए फिर हम वही चीज करेंगे कि उनको या तो कहेंगे ओके फर्स्टली यू गेट काम, देन यू विल
गेट दिस थिंग, या जो है उसके डिफरेंट जो टेंजिबल्स की मैंने आपको बताई है, जो टेक्निक्स हम अप्लाई कर सकते हैं कि उसको हम कहें कि रीइंफोर्सर दे दें कि ओके 5 मिनट्स स्क्रीन टाइम देन क्लोज, ताकि उसको ये भी पता हो कि हाँ मेरी लिमिट है। और उस वक्त नहीं देना आपने, जब वो क्राई कर रहा है उस वक्त नहीं करना, या तो उससे पहले ही करें कोई चीज, या उसको उसका डाइवर्ट कर दें, उसकी अटेंशन उस चीज से डाइवर्ट करके कोई और तरफ लगा दें। लेकिन अगर आपने उसने हिटिंग की, स्क्रैचिंग की, और उस वक्त आपने उसको वो चीज दे दी जो टेंजिबल, लाइक वो अगर पोइम सुनना चाह रहे हैं, तो वो उनका बिहेवियर लर्न हो जाएगा। तो यू नीड, जैसे मैंने पूरी प्रेजेंटेशन में ये चीज बताई है कि हमने एंटीसीडेंट्स को या तो मैनेज करना है या हमने कॉन्सिक्वेंसेस को मैनेज करना है कि क्या किस तरह वर्क करना है। जी जी, आई थिंक ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चंस हमने ले चुके हैं। Yes, हाँ, या सारे बिल्कुल है। ऑलमोस्ट हो चुके हैं। इंडिविजुअल हम लोग नहीं जा पाएंगे सारे क्वेश्चंस में, वो डिफिकल्ट है। आप अपने क्वेश्चंस आप अपने आप ग्रुप में हैं वहां डालिए, हम हो सके तो वहां हम आंसर कर सकते हैं, राइट नादिया एंड डॉक्टर अजरा। विद दिस can we wrap up today's session? What do you say? Or Yes, I mean, yes. Thanks a lot, Harshli, for giving us opportunity to thank you talk so to the much. directly to the participants and to you. Yes, it was really a very nice and interactive session, and really grateful to all the participants who joined in. And we really enjoyed answering to all your queries. And sorry if any query couldn't be answered because of the time limitation. And obviously, it's difficult to cater to the individual questions. We tried a level best. Okay, yeah, we can take, I mean, we can take individual this thing topics in detail later on, because there are many topics like how to handle, like questions are coming like sensory issues and various issues, like आपने जो slide में दिखाया कि कौन सी वजह से behavioral issue हो सकते हैं, उस पे अलग अलग एक सेशन हो सकते हैं। बिल्कुल, एंटीसीडेंट्स। जी आई थिंक हम ये नहीं कह सकते कि इट इज अ वेरी गुड सेशन, क्योंकि हम तो होस्ट हैं, है ना। हम तो पार्टिसिपेंट से पूछेंगे कि है ना, इज इट अ गुड सेशन और नॉट, आर दे आर सेटिस्फाइड और नॉट। जी जी, हम चैट बॉक्स में देख सकते हैं कि बहुत अच्छा सेशन बोला है, काफी मतलब ये है नॉलेजेबल सेशन, एंड सीरियसली बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है डिटेल में कि अगर एक एक बात जो कही है ना नादिया जी ने, उस पर ध्यान से सुन के आप अगर उस पे अप्लाई करेंगे तो एनी काइंड ऑफ बिहेवियर हम हैंडल कर सकते हैं। जो मैंने देखा है डिटेल में स्लाइड्स में जो टिप्स दी हैं, वो अच्छे से समझ के अगर हम अप्लाई तो ऑल काइंड ऑफ, मतलब कोई भी बिहेवियर उसमें हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि सेंसरी दिया हुआ है कैसे हैंडल करना है, क्या बाकी जो भी मैनेज बिहेवियर के हम उस सारे तरीके, एक्चुअली हमें क्रिएटिव होना पड़ता है हमारे बच्चों के, बिल्कुल उनको समझना एक मदर का काम, फादर का काम ही है कि कर रहे हैं, तो हम लोग उसको आई गेस इजीली हैंडल कर सकते हैं। हम एक जनरल गाइडलाइन तो दे सकते हैं, जारी बात है, मैंने यही कोशिश की है कि सब बिहेवियर्स के बारे में, जैसे मैंने सेंसरी का भी बता दिया कि हम उसका रिप्लेसमेंट बिहेवियर कर दें, उसको हमने रीडायरेक्ट करना है किसी चीज में। हम ये बच्चे को नहीं कह सकते, देखिए एक हमारे अंदर खारिश हो रही है, हम कैसे उसको कहें कि नहीं खारिश नहीं करनी है। हम उसको ये तो कह सकते हैं उसको कि चले आप उधर थोड़ा सा साइड पे होके खारिश कर लो लेकिन ये नहीं कह सकते खारिश ही ना करो। तो इसी तरह ये है कि अगर बच्चा हैंड क्लैपिंग कर रहा है, उसको हाथ हिलाने हैं, तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि ऐसे भी, हम ऐसे कह सकते हैं क्लैपिंग कर लो। इसी तरह मतलब ये डिफरेंट टेक्निक्स, हमें पेरेंट्स को जो है वो एक्टर बनना पड़ता है। वो यार असेसमेंट भी जरूरी है इंडिविजुअल, अगर क्लैपिंग कर रहा है तो उसको मे बी की जरूरत होगी। बिल्कुल, the individual assessment is must. We are also thinking and planning to do
द मेडिकल प्रॉब्लम्स विच कॉजेज बिहेवियरल इश्यूज, हम लोग ये इस पे भी सोच रहे हैं कि एक सेशन करें ना। यस यस यस, बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे बिहेवियर्स मतलब सुपरफिशियल नहीं हो सकते, हो सकता है जैसे मुझे भी वो एक्सपीरियंस हुआ है कि पेट दर्द हो रहा है तो नहीं आ रहा है, वो मेडिकल इशू है या लिटरली बिहेवियरल इशू है। लाइक साल तक मैंने वो झेला है मेरे बेटे के बारे में। एक्चुअली मैं एक चीज मिस कर गई थी इधर, मैं एक चीज मेंशन करूंगी। एक होता है बिहेवियर का फंक्शन कि उसकी वजह क्या है, एक होती है टोपोग्राफी, उसकी शक्ल क्या है। अब एक ही फंक्शन है, उसकी कई शक्लें हो सकती है। अब बच्चे को कोई चीज चाहिए, हो सकता है वो उसके लिए रो भी सकता है, उसके लिए मार भी सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि बिहेवियर हम वो पूरा चार्ट बनाते हैं, क्योंकि कई दफा ऐसा होता है कि शक्ल मुख्तलिफ है, फंक्शन एक ही है, उसको वो चीज चाहिए। तो ये चीजें देखना बहुत जरूरी है। अब जैसे एक जो मदर ने कहा है हिटिंग स्क्रैचिंग कर रहा है, वो बच्चे के बिहेवियर्स की शक्ल डिफरेंट है, लेकिन उसको क्या, उसको राइम सुननी है, तो फंक्शन उसका वो सेम है। तो ये चीज समझना बड़ा जरूरी है, और उसके हिसाब से उनका इंटरवेंशन प्लान बनता है। पेरेंट्स खुद सोचे कि क्या बन सकता है, इन पॉइंट्स को अपने सोच देख के ना कि हम क्या बना सकते हैं। जी जी जी, एंड थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। डॉक्टर अजरा को हमने तो वेकेशन में तंग किया है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आई एंजॉय इट। उनको ब्रेक भी नहीं लेने देते हम लोग, बट थैंक यू सो मच फॉर गाइडेंस बोथ ऑफ यू। And with this, I think we can wrap up today's session. हम मिलते हैं अगले महीने अगले सेशन में जरूर। Yes, sure. Looking forward to it. Yes, yes. Okay. Bye 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 Okay. everyone. Thank you parents for attending. Thanks everyone. Good night. Bye. Good night. Bye. Bye.